class 10th English syllabus in book First Flight. Poem Amanda is written by Robert Klein, and in this poem, as you see the title, Amanda, which is followed by an exclamation mark. By this, we come to know that in this poem, girl Amanda, who is the central character of the poem, is commanded by someone who is her mother, and she is given command that do Amanda do this and don't do this. She is some do's and don'ts are set for her, and in this poem, we see the state of mind of a girl who is always commanded or given instruction by her mother, and how this girl is how does this girl face to this problem which is given to her, and she takes her as a problem because she does not want to do whatever is told by her mother, so she wants to live in a world which is full of her own imaginations, and in that world she keeps thinking that she is a mermaid. Sometimes she thinks that she is a Rapunzel. Sometimes she thinks that she's an orphan. Even she does not feel any trouble in that type of life, whether she is a Rapunzel, whether she is an orphan, but she does not want to live the life which is her own life. She wants to live in imagination because she does not want to follow the rules set by her mother. So this poem is written in a conversational style in which all the dialects, all the voices, or the voice which is shown is of Amanda's mother, and Amanda is shown only keep imagining in the incomplete poem. So let's start the poem. In the first stanza, we see that mother is commanding Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. You all, I think you all might have been facing these type of problems which you consider as problem, but they are not problems. You all should know that if the parents are telling you anything, they keep commanding you or they keep giving you advice, that is not for your that is not to interrupt your freedom or to check your freedom. That is just to give you or tell you that what are the right ways to live, what are the right ways to be. So in the first stanza we see that Amanda's mother tells to her, don't bite your nails, Amanda. It is a bad habit, we all know. So Amanda's mother also tell her that don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. And in sometimes you have seen that some kids keep hunching their shoulders and doing other type of things that does not suit to their personality, and that doesn't look good. So her mother also tells her not to do that. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda's mother again tells her that stop slouching. She tells her to sit straight. She tells her कि अमांडा सीधे बैठो, आप ये ऐसे गलत पोस्चर में बैठते हैं, ऐसे मत बैठिए. अमांडा की मदर जो है उसको ऐसा कहती है. In next stanza, now imagination of Amanda is given in this next stanza. There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. In this stanza, Amanda imagines herself to be a mermaid, and you all know that mermaid जो होती है वो समुद्र में रहती है और वो बिल्कुल चुपचाप एकदम शांति में अपनी एंजॉय करते हैं अपने सॉलिट्यूड को. सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, वहाँ पर कोई नहीं होता है, वो लोग अकेले होते हैं, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं. इन द सेम वे अमांडा इज imagining herself to be a mermaid, and she thinks that there is a languid emerald sea, that वहाँ पर एकदम सी समुद्र है और वहाँ पर बिल्कुल शांति है. ग्रीन कलर की का वाटर दिखाई दे, ग्रीन कलर का है वहाँ पर आसपास, एंड समुद्र जो है बिल्कुल शांत है और वहाँ पर बहुत ही कोई नहीं है उसके अलावा. एंड वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मीन्स अकेले, इनहेबिटेंट मीन्स अकेली, वहाँ रहने वाली कौन है? अमांडा है. शी इज लोनली देयर एंड she is all alone there, and she thinks to be a mermaid and drifting blissfully.
and she thinks that if she is alone, it is a kind of bliss for her, and she imagines कि वो अकेली हो वहाँ पे और उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना हो, उसको कहने के लिए कि अमांडा तुम चुप हो जाओ, अमांडा तुम ये करो वो करो, ऐसा कहने के लिए उसको कोई भी ना हो. In next stanza, move to the next stanza. Here again Amanda's mother is commanding her and she is asking her about her work. Did you finish your homework, Amanda? Now Amanda's mother is asking, Amanda, did you finish your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? जैसे कि आपके पेरेंट्स भी पूछते रहते हैं, बेटा क्या आपने पढ़ाई की, क्या आपने ये काम किया, बट यू ऑल कीप टेलिंग कि हाँ अभी नहीं किया, कर लेंगे. ऐसे सेम वे में Amanda is also trying to postpone and trying to avoid her mother. Did you tidy your room, Amanda? And again Amanda's mother is asking a question कि क्या Amanda आपने आपका कमरा साफ किया, अपना रूम साफ किया? And here the question is again there is no answer. I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now Amanda's mother again उसको उसके shoes को साफ करने की बात याद दिला रही है, but there is no answer from the girl. She is all quiet, and again she will imagine in the next stanza. I am an orphan roaming the street, a pattern, soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now Amanda is thinking that she imagines herself to be an orphan. वो इतना सोचने लग जाती है कि वो बिल्कुल उसके आसपास उसकी कोई फैमिली नहीं है, अनाथ है. वो ये चीज़ इमेजिन करने लगी है, roaming the street, and she is imagining herself to be in roaming the street, की गली में ऐसे ही घूम रही है, गलियों में बिना कुछ पहने, चप्पलों में बिना पैरों में कुछ पहने, bare feet. I pattern soft dust with my hushed bare feet. Now अमांडा अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है जैसे ना उसने चप्पल पहनी, जैसे गली में कई ऑर्फन्स घूमते हैं, वो अपने आप को वैसा इमेजिन कर रही है और सॉफ्ट को अपने पैरों में टच होते हुए फील कर रही है. The silence is golden, the freedom is sweet, and she is thinking herself again that कि वो बिल्कुल चुप है वहाँ पर, उसकी जो साइलेंस है वो गोल्डन इमेजिन करी. मीन्स शी इज जस्ट डेस्परेट टू बी अलोन, शी इज डेस्परेट टू बी अलोन, एंड शी डज नॉट वांट ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस बाय हर मदर. एंड वो ऑफन होना चाहती है कि अनाथ बच्चों की तरह गली में घूमे. इन दिस स्टैंजा हाउ यू कैन इमेजिन दैट कितना वो लड़की जो है अपने पेरेंट्स से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या महसूस कर रही है, बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल. वो लड़की जो है वो ये चाहती है कि फ्रीडम मिले उसे, लिबर्टी मिले, एंड शी थिंक्स दैट उसको रोकने वाला कोई भी ना हो. बट ये चीज़ें जो लड़की इमेजिन करती है, दिस इज ऑल रॉन्ग, यू ऑल नो. क्योंकि अगर कोई बच्चे, जैसा हम सोचते हैं कि अगर आप लोग सोचते हैं या कोई भी सोचता है कि जो बच्चे गलियों में घूमते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, सो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो अमांडा है वो बिल्कुल मदर के आंसर्स, मदर को तो रिप्लाई कर नहीं रही है बल्कि कुछ और इमेजिन करी जा रही है. Now in next stanza her mother says, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. Now इस stanza में एक बहुत बात बताई गई ध्यान देने की, जो कि आप लोग भी जरूर करते होंगे. चॉकलेट खाना ये सब अलग बात है, बट इन द लास्ट लाइन, will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. There are many children who don't even look at the elders when they talk to them. This is very bad. And Amanda भी इसी टाइप की है. उसकी मदर उसे कहती है चॉकलेट ना खाने के लिए, because she has pimples on her face. She may have pimples on her face. तो उसकी मदर कहती है अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ, एंड आपके फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Her mother says, Amanda, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो, यहाँ वहाँ मत देखो, ध्यान ही नहीं देती हो क्या बात बोल रही है. उसकी मदर उसे फिर से टोकती है, एंड शी बिकम्स एनॉयड. उसकी मदर जो है उसको जब भी कमांड करती है अमांडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो उनकी तरफ देख भी नहीं रही है, बात कर रही है जब अमांडा जो है. अमांडा नेक्स्ट जो है स्टेंजा, उसमें अमांडा क्या कर रही है, शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी रेपुंजल. I am Rapunzel, I have no care, I have not a care. वो कहती है कि वो Rapunzel है. Rapunzel is in Greek mythology, there was a princess Rapunzel who was captivated by in a tower by a giant. एक किसी ने उसको
मॉन्स्टर ने उसको एक बड़े टावर में ऊपर, सबने कहानी सुन रखी होगी, उसे कैद कर रखा था एंड शी वॉज वेटिंग फॉर समवन जो कि आए और उसको फ्री कराए। देन आफ्टर सम टाइम एक प्रिंस वहाँ पर आता है एंड ही कट्स हर पेट, और उसकी जो लंबी चोटी होती है उसे कट कर देता है और उस चोटी के द्वारा ऊपर चढ़ता है और उसको वहाँ से आज़ाद करा के ले जाता है, क्योंकि वो अपने बाल जो लंबे लंबे होते हैं उनको नीचे गिराती है और उसको उसके जरिए वो ऊपर चढ़कर उस लड़की को बचा लेता है। कहानी सबने सुन रखी होगी। एंड इन दैट इन दिस स्टैंजा वांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी रेपुंजल। वो सोचती है कि वो रेपुंजल है एंड आई हैव नॉट अ केयर, और वो सोचती है कि ऊपर टावर में बैठे हुए उसको बिल्कुल भी केयर, किसी चीज़ की कोई डर नहीं है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, और वो बड़ी आराम से, अगेन शी इज imagining herself to be alone and enjoying solitude. In life, life in a tower is tranquil and rare. और वो अगेन ये इमेजिन करती है कि वहाँ पर रहना और वहाँ की जो लाइफ है बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी है और रेयर है, बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। I'll certainly never let down my bright hair. और अमांडा सोचती है मन में कि अगर वो उसको ऐसे कोई जगह पर जाना होगा, वो कैद हो गई, तो वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं फेंकेगी कि कोई उसे बचा के ले जाए। तो कितना लड़की अपनी लाइफ से तंग है या कितनी अपनी लाइफ से दूर जाना चाहती है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती है कि वो एक किसी कुछ भी बनने के लिए तैयार है, चाहे वो मरमेड बनना हो, चाहे ऑर्फन बनना। ऑर्फन बनना कितनी ये अनाथ होना कितना वो है, लेकिन लड़की को भी उस चीज़ को भी अपनाना चाहती है, तो किस लिए, सिर्फ अपनी लाइफ से अलग होने के लिए। एंड रेपुंजल बन जाना चाहती है और ये चाहती है कि कोई भी उसको बचाने के लिए ना आए। सो लुक एट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द गर्ल कि वो कितनी ज़्यादा अपनी लाइफ से, उसको लगता है कि उसकी लाइफ कितनी खराब है और वो उससे दूर जाना चाहती है। Stop that in next stanza mother is again commanding, stop that sulking once Amanda, at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda. And now mother जो कहती है उसे कि अमांडा आप ये जो बात बात पे सल्किंग मीन्स रूठ जाना, बात बात पे रूठ जाती हो, बात बात पे मुंह बना लेती हो, ये सब चीज़ें छोड़ो, इन सब चीज़ों को मत करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हर वक्त इतनी मूडी रहती हो, कभी भी थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाती है, थोड़ी सी बात पे मुंह बना लेती हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, ऐसी चीज़ें नहीं करो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। और उसकी मदर कहती है अमांडा ऐसे मत करो वरना कोई सोचेगा कि शायद मैंने तुम्हें डांट लगाई है या पिटाई लगाई है, इस वजह से तुम ऐसे मुंह बना रही हो, तो इसलिए ये सब बिहेवियर जो है अपना चेंज करो, अमांडा की मदर से कहती है। So you have seen that all these stanzas, the mother is telling Amanda and she is commanding Amanda that Amanda do this thing and do not do these things, do's and don'ts जो है उसके लिए सेट कर रही है बार बार, बट अमांडा जो है वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। So in this poem we have we see two type of views. We have two type of views. One of them is of parents कि पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक अलग लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं या उनसे कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो लोग ये काम करें और वो ना करें, बट जो बच्चे हैं वो उनको समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं एंड दे हैव देयर ओन माइंडसेट एंड द पेरेंट्स हैव देयर ओन। सो इन दिस वे दिस पोएम इज गिविंग अ मैसेज कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा बच्चों के प्रति ये होना चाहिए, उनको प्यार से समझाएं या उनकी मेंटलिटी को समझने की कोशिश करें। एंड एट द सेम टाइम चिल्ड्रन ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स एंड डोंट थिंक कि पेरेंट्स अगर आप लोगों को कुछ कह रहे हैं तो वो आपकी आज़ादी को या लिबर्टी को कंट्रोल करने के लिए है। दिस इज ऑल फॉर योर गुड। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम एंड टेक द now read the poem carefully and do the explanation in your notebook, stanza wise explanation, and do question answer.